Hi there, this is Divyanshu once again, and I welcome you all to the session of communication skills. So today we have few more words, and we're going to talk about few more helping verbs today. So how do we pronounce these words? So the first one is auction. How do we say it? Auction, auction, auction. And the second one is perfection, perfection, perfection. And the third one is infatuation, infatuation, infatuation. And the fourth one is selection, selection, selection. And the last one is prevention, prevention, prevention. So the first one is auction, and the second one is perfection, and the third one is infatuation, and the fourth one is selection, and the fifth one is prevention. So auction, perfection, infatuation, selection, and prevention. One more time: auction, perfection, infatuation, selection, and prevention. So I would want you to write down these words, and I'm going to rub them. So we are going to talk about this situation today, which we have done in the past. Whenever we talk about imagination, the work which has not been done or it never occurred. When we talk about imagination, when we talk about fantasy, like मैं ये कर देता, मैं वहां चला जाता, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर देता. तो जब मैं कहता हूं मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर देता, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया नहीं है. It's just an imagination, मैं कर देता. तो इन वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, that is would have plus third form of the verb. मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर देता, मैं वहां चला जाता, मैं उससे बात कर लेता, मैं गिर जाता, मैं तुम्हारी शिकायत कर देता, मैं तुम्हें डांट देता. would have plus third form. और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, that would be would have been plus third form. So वो होगा would have been plus third form. जैसे मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर देता, I would have informed you, और तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाता, you would have been informed. तुम्हें वहां भेज दिया जाता, you would have been sent over there. तुम्हें बता दिया जाता, you would have been told. तुम्हें इनवाइट कर दिया जाता, you would have been invited. तुम्हें डांट दिया जाता, you would have been scolded. तुम्हें पढ़ा दिया जाता, you would have been taught. तुम्हें पैसे दे दिए जाते, you would have been given money. So that's how you make sentences with the help of would have been. And we have one more rule in it. एक तो हमने किया कि मैं वहां चला जाता, I would have gone over there. और इसकी जो सेकंड कंडीशन होती है, जैसे अगर तुम मुझे पैसे देते तो मैं वहां चला जाता, इसमें जो हम रूल लगाते हैं, which is had plus third form plus would have plus third form of the verb. अगर तुम मुझे पैसे देते तो मैं वहां चला जाता. If you had given me money, I would have gone over there. और had you given me money, I would have gone over there. जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो it will be had been plus third form plus would have been plus third form of the verb. तो अगर मुझे पैसे दे दिए जाते तो उसको वहां भेज दिया जाता. If I had been given money, then he would have been sent over there. अगर मुझे इनवाइट किया जाता तो उसको भी इनवाइट किया जाता. If I had been invited, then he would have been invited as well. तो जब कभी भी आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल मैं गिर जाता, I would have fallen. मुझे धक्का दे दिया जाता, I would have been pushed. और जब आप एक कंडीशन के साथ बनाएंगे, अगर मुझे पैसे दे दिए जाते तो बाजार से सामान खरीद लिया जाता. If I had been given money, then goods would have been bought from the market. So that's how you will make sentences with the help of this situation. I would want you to practice on this, and remember you can make 6 sentences with this situation as well. जैसे उसको इनवाइट कर दिया जाता, he would have been invited. उसको इनवाइट नहीं किया जाता, he would not have been invited. क्या उसको इनवाइट किया जाता, would he have been invited. क्या उसको इनवाइट नहीं किया जाता, would he not have been invited.
and why would he have been invited and why would he have not been invited. So that's how you make sentences with the help of this situation, which is would have been plus third form, and this is the passive voice of would have. So I would want you to practice on this situation, or I would like to give you a few tips as well as far as communication skills are concerned. If you see, we have done so many sessions so far. So in this session, I would like to tell you the best way to improve your communication skills. So if you look at this, now I'm going to draw something for you out here. Look at this. So this is obviously my palm. So these are the 5 fingers, 5 elements of communication skills. So the first element which we have, that is letters. So जब कभी भी हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले उसमें हम क्या सीखते हैं? We learn letters. हम letters सीखते हैं. दूसरा जो हमारा स्टेप होता है, we always learn words. तीसरे स्टेप में हम क्या सीखते हैं? Sentences. उसके बाद हमारा जो फोर्थ लेवल होता है, which is paragraph, or you can say, comprehension as well. And what is the thumb rule? In order to master these 4 elements, what is the thumb rule? Thumb rule is always practice. Always remember practice. You need to keep practicing. जहां तक लेटर्स का संबंध है, A B C D E F G H I J K, ये सब हमें आते हैं. और अगर हम वर्ड्स का बात करें, जो हमारी वोकैबुलरी, जो हम इंप्रूव करते रहेंगे, और वोकैबुलरी इंप्रूव करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? आई एम श्योर आपको बताया गया होगा कि आप डिक्शनरी में 5 वर्ड रोज देखें, न्यूज़पेपर में से वर्ड्स को याद करें. आप ऐसे भी अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कर सकते हैं. बट ऑलवेज रिमेंबर, द वर्ड्स व्हिच यू विल नॉट यूज, यू विल लूज. जिन वर्ड्स को आप यूज नहीं करेंगे, उन वर्ड्स को आप लूज कर देंगे. सो द बेस्ट वे टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी इज, आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखें आप कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं. जो वर्ड भी आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, उसको सोचें कि मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा. व्हाट वुड बी द इंग्लिश ऑफ दिस वर्ड. आप खाना खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आप बैठे हैं, आप खेल रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप फोन पे बात कर रहे हैं. आप अपने माइंड में सोचें, हाउ वुड आई से दीज वर्ड्स इन इंग्लिश. सो जब आप ऐसा सोचेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा. Start writing those words and start asking someone who's around you what will be the English of those words, and start using those words in your day-to-day life. और third level आपका होता है sentences. Sentences we make with the help of grammar. उसके लिए आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको ग्रामर के रूल पता होने चाहिए, एंड देन यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट दोज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. जैसे अगर आप कोई हिंदी मूवी भी देख रहे हैं, सो व्हाइल वॉचिंग हिंदी मूवी, आप ये देखें कि इस लाइन को, जो लाइन ये हिंदी में बोल रहा है, हाउ वुड आई से दिस इन इंग्लिश. जो भी सेंटेंस आप हिंदी में अपनी डे टू डे लाइफ में बोलें, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें. एंड द फोर्थ सेंटेंस विल बी पैराग्राफ. पैराग्राफ आप कैसे बनाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन कैसे बनेगा? जब आप धीरे धीरे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे, तो एक लेवल आपका ऐसा आएगा कि आपको हिंदी में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. एंड यू विल बी थिंकिंग इन इंग्लिश एंड यू विल बी कन्वर्टिंग योर सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश एंड यू विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश एज वेल. बट इनिशियल लेवल पे अगर आपका इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं रहा है, अगर आपने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी है, इट इज नॉट दैट यू विल बी एबल टू थिंक इन इंग्लिश. अगर आप हिंदी में सोचते हैं, दैट्स ओके. आप हिंदी में सोचें और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें एंड ट्राई टू से इट. विद इन 1 month and 2 months आप पाएंगे कि हिंदी डिसअपियर हो गई है और आप इंग्लिश में सोच रहे हैं और आपने इंग्लिश में ही बोलना शुरू कर दिया है. सो दैट्स हाउ you improve your communication skills. And remember the thumb rule, which is practice. As they say, I heard it once, करत करत अभ्यास से जनमत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान. तो अभ्यास करने से, बार बार एक ही चीज को करने से, अगर रस्सी को बार बार सिल पर लगाने से रस्सी पे भी निशान पड़ सकता है, तो बार बार प्रैक्टिस करने से आप किसी भी स्किल को मास्टर कर सकते हैं और किसी भी स्किल को अपने अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं. सो मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक के हमारे सेशन देखे होंगे and it has helped you to improve your communication skills. and मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने अभी तक हमें इतना सहयोग दिया है.
आने वाले सेशंस में हम और प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे, वोकैबुलरी की बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज सो फार। और मैं उम्मीद करता हूं जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब तक आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर चुके होंगे और आप इंग्लिश में बातें कर रहे होंगे। इंग्लिश में बोलना शुरू करें। अगर आप शुरू में हिंदी में भी बोल रहे हैं कोई बात नहीं, उसको इंग्लिश में सोचें। दैट हाउ वुड यू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। गलतियां आप शुरू में करेंगे, कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स। गलती करना कोई गलत बात नहीं है, आप गलती करेंगे, दैट्स ओके, दैट्स हाउ वी लर्न। यू विल मेक मिस्टेक्स एंड यू विल लर्न। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड आई होप the next time and if I ever get an opportunity, अगर मुझे कभी मौका मिले आपसे मिलने का, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उस वक्त आप इंग्लिश में बोल रहे होंगे, अपनी लाइफ को इंप्रूव करेंगे एंड इंग्लिश लैंग्वेज आपको हेल्प करेगी आपकी लाइफ में सफल होने के लिए। सो वंस अगेन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, do take care of yourself and I'll get back to you very soon. Take care. Bye bye.